we are discussing chemical bonds at the moment. And it is very important to understand that a bond is an attractive force जो अलग अलग रीजन से क्रिएट होता है. ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये अलग अलग रीजन से क्रिएट होता है और अलग अलग स्ट्रेंथ्स का होता है अट्रैक्शन अलग अलग रीजन से क्रिएट हुआ सॉरी अलग अलग स्ट्रेंथ का हुआ. और अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें just give me a minute. Just give me a minute, beta. I'm just. I am still not well, and I don't think I have COVID or anything. I think it's just a viral. So you'll have to bear with me in today's class also. So, तो मैं क्या कह रही थी? मैं भूल गई. मैं शायद कह रही थी कि हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो आयोनिक बॉन्ड जो है दैट और जो वंडर वॉल्स फोर्सेस हैं वो इतने वीक है और इतने शॉर्ट लिव्ड हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि पास आते हैं तो बॉन्ड बन जाता है, दूर जाते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है. हम वंडर वॉल्स फोर्सेस की बात करें, जल्दी पढ़ेंगे इन्हें और हम देखेंगे कि इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो इन्हें हम बॉन्ड कहते ही नहीं है, वी कॉल देम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. पर आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम आज पढ़ेंगे इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं. पहले तो हम बुक की डेफिनेशन पढ़ते हैं. So this is the definition that you are expected to write in the exam. This is the definition you are supposed to write in the exam. और फिर मैं इसको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. तो आप इसको लिख लीजिए. इसको लिख लीजिए और एक बार पढ़ भी लीजिए ठीक से. Have you written it, beta? So this bond is electrostatic in nature and is represented by a dotted line. सबका बॉन्ड्स का थोड़ा थोड़ा अलग रिप्रेजेंटेशन होता है. जैसे जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जहां पे भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से, यानी अगर आप कहीं पे कोई फॉर्मूला देखते हैं और उसके आसपास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, then that is a complex. Similarly, hydrogen bond is represented by a dotted line. So now let us see what do we understand by this definition. We'll now see what we understand by this definition. Now let there be a hydrogen atom and another atom A. So we have a hydrogen atom and another atom A. और ऐसे ही एक और हाइड्रोजन एटम एंड अनदर एटम B. सो हाइड्रोजन एटम है, एक एटम है A, एक और हाइड्रोजन एटम है, एक एटम है B. एंड देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन H and A. कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग से. सो देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन HA and there is a covalent bond between H and B. और इसका मतलब आप क्या निकालते हो? कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन A and B. सो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है बिटवीन A and B, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज that A and B are highly
electronegative. A and B are highly electronegative atoms. And the three most electronegative atoms of the periodic table are fluorine, oxygen, and nitrogen. सबसे ज़्यादा electronegative atoms of the periodic table. So important thing here is that A and B are highly electronegative. And आप पढ़ चुके हैं कि therefore ये जो electron pair है making the bond, that is the shared pair of electrons, is pulled by the electronegative atom. Covalent bond में the shared pair is pulled by the electronegative atom, and this property is called electronegativity, right? So since A and B are highly electronegative, this shared pair of electrons spend more time with A. अगर हम HA molecule की बात कर रहे हैं, so the shared pair of electrons spend more time with A, and therefore A develops a partial negative charge. और इसके ऊपर क्योंकि partial negative charge आ गया, तो a partial positive charge comes on hydrogen. The same thing happens with the other molecule. Since B is more electronegative, highly electronegative, naturally the shared pair of electrons spend more time with B. तो इसलिए इसके पास partial negative charge आ जाता है and hydrogen develops a partial positive charge. अब क्या होता है कि when these two such molecules का मतलब ये दोनों molecules HA हो सकते थे, ये दोनों molecules HB हो सकते थे, HA हो सकते थे, HB हो सकते थे, और HA और HB भी हो सकते थे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं. So जब इस तरह के दो molecules are brought together, then a special bond is formed between this electronegative atom, which is covalently bound to hydrogen, with another hydrogen, जो दूसरे molecule पे है. So this bond is formed and this is represented by a dotted line, और इसी bond को कहते हैं hydrogen bond. Now मुझे तो personally ये bond बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर ये बॉन्ड नहीं होता ना इस प्लैनेट पे, तो आज आप और हम ये क्लास कर ही नहीं रहे होते, ना आप होते ना हम होते. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही तो सारा लाइफ फॉर्म है. हमारे सारे जीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी. बहुत ही यूनिक बॉन्ड है ये हमारी सारी लाइफ की एग्जिस्टेंस है. मैं कह रही हूँ ना, आज हम और आप बात कर ही नहीं रहे होते हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं. और आप जानते ही हो कि वाटर में लाइफ ओरिजिनेट हुई थी हमारे प्लैनेट पे, है ना. तो हमारी लाइफ सारी वाटर पे डिपेंडेंट है. तो ये तो हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में. अब ये मैं कह रही हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद है. And now oxygen and sulfur belong to the same group. Oxygen and sulfur belong to the same group and they have the same valence shell electronic configuration. But H2O exhibits hydrogen bonding and H2S does not. दोनों एक ही ग्रुप के हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक के नीचे एक है. ऐसा क्यों? तो अब तक आप पढ़ चुके हो कि बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स कैन नॉट बी 100% कोवलेंट. पढ़ चुके हो आप, मैंने भी डिस्कस किया और आकांक्षा मैम के साथ भी आपने पढ़ा होगा कि अगर दो एटम्स के डिफरेंट एटम्स के बीच में अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इट कैन नॉट बी 100% आयन. 100% कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है व्हेन द एटम्स हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोनों इकट्ठा एक साथ खींच रहे हो, टग ऑफ वॉर. तो जैसे H2 है, Cl2 है, इनके बीच में बॉन्ड 100% आयनिक है. इनके बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट आर राइट इन द सेंटर if the bond is formed between two same atoms. Otherwise तो वो सब आपने सुना ही है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसकी लाठी उसके. एक कोवलेंट बॉन्ड में जो दो एटम्स के बीच में बना है, अब जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी सी भी ज्यादा होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लेगा, थोड़ा सा पुल कर लेगा. ज्यादा ताकत होगी तो बिल्कुल ही अपने पास रख लेगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी. नहीं तो अगर डिफरेंट तो किसी कोई तो छोटा बड़ा होगा ना. अगर बिल्कुल सेम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा और जिसकी भी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ खींचेगा. अब यहाँ क्या है that electronegativity of oxygen is much higher than that of electronegativity of sulfur. जो इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर है ना, electronegativity of oxygen is much higher than that of sulfur.
and therefore oxygen is able to draw the shared pair of electrons more towards itself. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसमें ऑक्सीजन इज एबल टू ड्रॉ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ देन सल्फर। तो क्या है कि डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव तो हमेशा ही बनेंगे, दे वुड ऑलवेज बी देयर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो सल्फर और हाइड्रोजन में भी है, एंड डेफिनेटली सल्फर हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसमें जितनी ताकत वो उतनी ज्यादा अपने पास पुल करेगा। पर अब हम बात हाइड्रोजन और सल्फर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और सल्फर की। तो ये जो है, जो पार्शियल चार्जेस डेवलप हुआ है ना बेटा, ये जो प्राइम है, डेल्टा प्राइम है, दिस H डेल्टा प्राइम डेफिनेटली इज लेस देन H डेल्टा प्लस, क्योंकि सल्फर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर ले और हाइड्रोजन को बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज दे, राइट? सो इसलिए ये पार्शियल चार्जेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और इन्हीं हायर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो हाइड्रोजन में ज्यादा हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां आ जाती है। स्ट्रॉन्ग चार्जेस है ना, ये सल्फर में वीक चार्जेस है। So water molecules get associated with hydrogen. ऐसे पर इसका मतलब ये नहीं है वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गया, लेकिन सल्फर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो नहीं जुड़े, लेकिन इनके अंदर जो है वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं इस क्लास में इसको नहीं छेड़ूंगी। तो H2S में वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो हम बाद में बात करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि सल्फर इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से लिंक्ड ये नहीं है। तो एक बात यहाँ जो हमने देखी कि जब भी टू मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड बनता है, तो उसे पोलर मॉलिक्यूल तो कहते ही हैं। पोलर मॉलिक्यूल तो कहते ही हैं। जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो किसी एक के पास हो गई जो ज्यादा जिसमें ताकत है। पोलैरिटी तो उस मॉलिक्यूल में आई जाती है। Polarity comes in that molecule. That is why covalent molecules have ionic character. Covalent molecules have ionic character because of this reason only. Polarity तो आई जाती है। पर हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं होती। पोलर मॉलिक्यूल्स तो हमेशा ही बनेंगे जब दो डिफरेंट एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, वो पोलर ही होगा मॉलिक्यूल। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देखा इट डजंट अकर इन ऑल पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि इसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। तो अब हम देखते हैं क्या चीजें जरूरी हैं। अभी तो हमने देखा ही है ना, हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनती है व्हेन हाइड्रोजन इज बाउंड टू a highly electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen. कहीं कहीं पे क्लोरीन में भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना पार्शियल चार्जेस आ गए हैं। बट ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन शुड बी बाउंड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इतने वीक होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। पोलैरिटी तो आएगी वहां पे, पर पार्शियल चार्जेस को भी तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव को भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। और वैसे भी ये कितने ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, और बॉन्ड्स के कंपैरिजन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक ही होता है, क्योंकि पार्शियल चार्जेस है ना, पूरे चार्जेस तो नहीं। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? हमें चाहिए कि दीज एटम्स मस्ट हैव स्मॉल साइज। बहुत जरूरी है स्मॉल साइज। जितना एटम छोटा होगा, स्मॉलर इज द एटम, उतना ही वो पास होगा हाइड्रोजन से। सो स्मॉलर इज द एटम,
closer it would be to hydrogen. और फिर जितना छोटा होगा चार्ज डेंसिटी उसकी हाई होगी. यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चार्ज डेंसिटी बाय नाउ. और फिर वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर पाएगा. चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी ना बेटा, वो छोटा साइज के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर ज्यादा होगा, तो फिर इसलिए वो ज्यादा पुल कर पाएगा अपने पास. इसीलिए फ्लोरीन forms the strongest hydrogen bonds. Hydrogen bonding, strength of hydrogen bonding is maximum in HF. HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा है. अब जरा इस क्वेश्चन को आंसर करो. इफ यू हैव रिटन दिस, आंसर दिस क्वेश्चन. आंसर दिस क्वेश्चन. Electronegativity of nitrogen is approximately the same as electronegativity of chlorine. You should be able to answer this. So electron size of chlorine compared to nitrogen. Yep, exactly. So negative charge density जो है नाइट्रोजन के ऊपर हाई हो जाती है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसका ज्यादा हाई हो जाता है. इसीलिए तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा कंपैरेटिवली. और अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बारे में सोचना. मैं बताऊंगी नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगी. दोबारा पूछोगे तो बाद में बताऊंगी, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सोचना. सोचो कि सिर्फ हाइड्रोजन ही क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है. बेरिलियम बॉन्ड और कार्बन बॉन्ड और नाइट्रोजन बॉन्ड और आर्गन बॉन्ड क्यों नहीं होते. ये अभी मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगी. कुछ चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है, तो ये आप अपने आप लिखने की, सोचने की कोशिश करो, बाद में डिस्कस करेंगे. सो ये एक वीकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, एज कंपेयर टू, ये बहुत वीक बॉन्ड है बेटा, एज कंपेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अ कैटायन एंड आयन. आयनिक बॉन्ड में जो होता है, आयनिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, बट मच वीकर. तो आयनिक बॉन्ड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन प्योर कैटायंस एंड प्योर एनायंस. और मेटालिक बॉन्ड में क्या हमने देखा था कि मेटल कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है, वो भी बहुत स्ट्रांग होता है. और कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होता है. तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर है, बट इट इज वेरी वेरी वीक. और अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली ये वंडरवॉल्स फोर्स ही है. जब हम वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, तो एक्चुअली ये स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवॉल्स फोर्स है. तो इसलिए हम इसको अलग कैटेगरी में बॉन्ड कह देते हैं, बट एक्चुअली में वंडरवॉल्स फोर्स है. अब ये दो तरह के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आप पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी हम मूव करेंगे. सो दे आर ऑफ टू टाइप्स: इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, intermolecular hydrogen bonding, or intramolecular hydrogen bonding. So let us start with the first one, intermolecular hydrogen bonding. तो ये आपकी है स्टेटमेंट. जैसे हमने अभी देखा था कि हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल पे जिसके साथ वो कोवेलेंटली बाउंड है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर. ये मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, HA भी हो सकते हैं, HB भी हो सकते हैं, HA भी हो सकते हैं. A और B को हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना है बस. नाउ जैसे अभी देखा, दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन इन HF. बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है इन तीन मॉलिक्यूल्स में
hydrogen bonding, strong hydrogen bonding as compared to other polar substances. तो इनको हमने देखा HF में, इनको हम देखते हैं वाटर में, ऐसे जो अभी हमने देखा था। इनको हम देखते हैं अमोनिया में, इस तरह से, और एसोसिएट होते चले जाते हैं मॉलिक्यूल। और वाटर और अल्कोहल में भी, अल्कोहल वाटर में मिसिबल होता है ना, वाटर और अल्कोहल में भी। इथाइल अल्कोहल की ये डायग्राम है। तो कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग होनी चाहिए एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, जो दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। आई एम चेंजिंग द स्लाइड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, और अभी हमने देखा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अब हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। So this is the statement. तो हाँ, आप सब ये पढ़ चुके हो, अच्छी तरह से जानते हो कि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन जाते हैं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, बिटवीन हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर तीनों एटम्स हैं तो ये बन जाते हैं। चलिए एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे यहाँ से आगे बढ़ने से पहले। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक एक आध क्वेश्चन हम देख लेंगे, पर पहले इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। So ortho hydroxybenzaldehyde and orthonitropheноls are examples of intramolecular hydrogen bonding that exists within a molecule. So this is orthohydroxybenzaldehyde. इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। So this is orthohydroxybenzaldehyde, hydrogen bond occurring within a molecule. And the other example, orthonitrophenol ka is this is orthonitrophenol. बेटा आपको अपना ऑडियो ऑफ करना पड़ेगा, ऑडियो कर दीजिए प्लीज। सो ऑर्थो आइसोमर में बेंजाल्डिहाइड के और ऑर्थो आइसोमर में नाइट्रोफिनॉल के you can actually see the intramolecular hydrogen bond. Now you can see that a ring structure on it is being formed. You can see the ring structure on it being formed. ये जो molecule के ऊपर अंदर बन रहा है एक extra ring, and we call this ring as chelate. If you are a Delhi University product, you will call it as a chelate. But कुछ लोगों को मैंने chelate भी सुना है कहते हैं, chelate भी सुना है कहते हैं। तो इसकी एक
जो मेरे साथ ही हुआ था कि एक बार हमने अपनी क्लास में बोला था कि ये चीलेट है, तो मेरे टीचर ने बोला कि क्यों ये चीलेट क्यों है, आप क्या केमिस्ट्री को केमिस्ट्री बुलाते हो, CHE तो केमिस्ट्री में भी है, आप इसको केमिस्ट्री बुलाते हो, जब आप उसको केमिस्ट्री बुलाओ आप इसको कीलेट बनाओगे, बट इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। सो व्हेन आई केम होम उस समय जब मैंने अपने घर में बात की तो मुझे कहा गया क्यों चेस को फिर चेस क्यों बुलाते हो, उसमें भी तो CHE है, उसको भी तो हम चेस बुलाते हैं, कैस थोड़ी बुलाते हैं। सो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। सो आप इसको कीलेट कहो चीलेट कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ मुझे कीलेट बोलने की आदत है क्योंकि हमें हमारे प्रोफेसर्स ने हमेशा कहा कीलेट बोलो, तो हमने कीलेट बोला। चीलेट भी बोलते तो क्या फर्क पड़ता है, ना स्पेलिंग चेंज होती है ना मतलब चेंज होता है। सो इट्स अ फनी लैंग्वेज। सो आप सेकेंड ईयर में आप करोगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड देन यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ कीलेट्स, वहां पे कीलेट्स बनते हैं जब कॉम्प्लेक्स वर्ड, अब आप पढ़ोगे इसको। और कीलेट बनने से क्या होता है, जब कीलेट्स बन जाते हैं ना तो दिस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, क्योंकि अब एक और बॉन्ड तोड़ना पड़ता है इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, तो यू नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक अनदर बॉन्ड, तो इसलिए दिस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। और अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पेपर से, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन ही आंसर करना है ना जो आप पढ़ रहे हैं। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। तो लेट अस सी अ क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। इसको लिख लो पहले। इसको आंसर कर पाओगे? कैन एनीबॉडी आंसर? एक बार चेक करो स्ट्रक्चर, आपने जो लिखा है चेक करो, मेटा और पैरा पोजिशंस। आपको आंसर मिलना चाहिए बच्चे। सम ऑफ यू, एटलीस्ट वन ऑफ यू मस्ट आंसर। आपने अभी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं ना ऑर्थो वाले, अब जरा मेटा और पैरा पोजिशंस पे ध्यान दो और देखो कि क्यों नहीं होता। ये तो स्कूल में भी पढ़ा है बच्चे। कैन एनीवन आंसर? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? तो कोई बात। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होगी ना उनमें। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, दिस इज द आंसर। सबको सब कुछ पता होता है, पर मुझे लगता है सब हेसिटेट करते हैं बोलने में। यस मैम। हाँ, मैं सच्ची में बिल्कुल नहीं डराती बच्चों को। अभी जब आप मेरे से मिलोगे ना कॉलेज में, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता छोटे छोटे बच्चों को डराने में। अगर मैं क्वेश्चन भी पूछती हूँ ना और आप नहीं भी आंसर करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। इट इज ओनली द पार्टिसिपेशन दैट इफ आई कैन जस्ट मेक यू थिंक, दैट इज इनफ फॉर मी। अनदर क्वेश्चन। हम सबको क्या हर चीज हर समय आती है क्या? मुझे तो नहीं आता सब कुछ। आई एम श्योर आई डोंट नो एवरीथिंग एंड दैट टू ऑल द टाइम। क्या मैं भी नहीं क्लेम कर सकती कि सारी केमिस्ट्री मेरी टिप्स पे ही होती है हमेशा? आई एम नॉट दैट ग्रेट। तो मैं नहीं हूं तो मैं छोटे छोटे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करूंगी? बट हाँ, पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी। अगर मन में कुछ आ रहा है तो कह दो। इसका बताओ जरा, इससे पहले तो बताओ मतलब क्या निकालते हो इसमें, मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, एसिडिक का मतलब क्या होता है? एसिडिक का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल एसिडिक है मींस ease with which the molecule would lose a proton, ease with which the molecule would lose a proton। जो मॉलिक्यूल जितनी आसानी से प्रोटॉन रिलीज कर देता है, H+ आयन रिलीज करता है, वो एसिडिक होता है। ये तो सबको ही पता है। एसिड का मतलब वही तो होता है कि H+ आयंस जो है वो आसानी से बताओ। मैम मेटा एंड पैरा ऑर्थो डेरिवेटिव and para there is no bonding so they can take proton easily। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब।
See, so nice. You're answering also. You're making me so happy. Don't you think you are too good? You make your teachers happy. So when you answer and when you understand, then your teachers become happy. So if you have written this, then एक्चुअली एक वो लैंग्वेज है जो एक्सपेक्टेड है ना, एक खास लैंग्वेज आपसे एक्सपेक्टेड है. तो ये भी ध्यान रखना है कि नॉट ओनली दैट यू नो एवरीथिंग, यू हैव टू शो ऑल्सो दैट यू नो एवरीथिंग, एंड दैट कैन ओनली कम व्हेन यू हैव रिटन द राइट वर्ड्स, जस्ट द राइट वर्ड्स, ना ज्यादा ना कम. बहुत ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, और हम तो खैर लिखना ही नहीं है, चीज को तो आपको एक्सप्लेन करना ही है. सो नाउ आई विल मूव अहेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. द प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की, जल्दी से देख लेते हैं उनको. सो वी कैन सी, जो आपने अभी देखा, दैट हाइड्रोजन बॉन्ड इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू HA मॉलिक्यूल्स. यहाँ मैंने इसको डिपिक्ट किया है कि सपोज दो HA मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एस्टैब्लिश है. ये दो HB के बीच में भी हो सकता था, या HA HB के बीच में नहीं हो सकता था. एंड यहाँ से यू कैन डेफिनेटली सी that it is established between hydrogen and two electronegative atoms. Usually एक बॉन्ड के बीच में ना दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, काफी है. बाकी मॉलिक्यूल में और क्या हो रहा है, बाकी एटम्स क्या कर रहे हैं, बॉन्ड को मतलब नहीं होता. लेकिन यहाँ बॉन्ड को मतलब होता है, यहाँ बॉन्ड को मतलब होता है. ये पहला वाला जो मॉलिक्यूल है HA, इसका A दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाएगा जब तक कि वो H के साथ कोवेलेंटली बाउंड नहीं होगा और दूसरा मॉलिक्यूल A के साथ कोवेलेंटली बाउंड नहीं होगा. यू कैन अंडरस्टैंड. सो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए तीन एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन एंड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. अगर राइट हैंड साइड में जो मैंने HA लिखा है, अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, राइट हैंड साइड पे जो HA मॉलिक्यूल है, if this A is not electronegative, then H will not get a partial positive charge. If H doesn't have a partial positive charge, it will not combine with the partial negative charge of the A on the left hand side. इसकी बात कर रही हूँ मैं. अगर ये A electronegative नहीं है राइट हैंड साइड वाला, then this will not get partial positive charge. If this doesn't get a partial positive charge, then this will not combine with this. So ये एक ऐसा bond है जिसमें तीन atoms are involved in making a bond. 3 atoms are involved in making a bond. Hydrogen and 2 electronegative atoms का होना जरूरी है. अब bond तो बन जाता है, but it's not involve either sharing or transfer of electrons. ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं. तो फिर बॉन्ड तो स्ट्रांग हो नहीं सकता ना. हर चीज की कीमत होती है ना जिंदगी में. तो ये तो बॉन्ड फिर इतना स्ट्रांग बन नहीं सकता कि आपको इलेक्ट्रॉन भी शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको स्ट्रांग बॉन्ड बनाना है. तो नेचुरली ये बहुत वीक बॉन्ड है, बहुत वीक बॉन्ड है. तो हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है जो हम देखेंगे. अब तो मैंने कहा अगर आप बॉन्ड वर्ड यूज करते हो, इट इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड इन दैट सेंस ऑफ वर्ड. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक वंड वाल्स फोर्स है. एक वंडर वाल्स फोर्स है. नाउ जो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड की, दिस इज इन द रेंज 20 to 40 kilojoules per mole. जबकि एक
कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी जो है दैट इज बिटवीन 150 एंड 500. अब आप इमेजिन कर लो कि ये कितना वीक बॉन्ड है. ऊपर देखो जहां पे मैंने HA और HB लिखा हुआ है, HA और HA लिखा हुआ है, वहां देखो. सो ये जो है दिस इज 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल. ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसीलिए आप देख रहे हो कि कितना दूर है ये दूसरे मॉलिक्यूल से, कितना दूर है. और ये जो HA मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे, HA जो लिखा हुआ है, दिस इज, ये जो HA है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दिस इज बिटवीन 150 to 500 किलो जूल्स पर मोल. अब ये जो है आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आप देख रहे हो, ये ब्रिज कर रहा है 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को, बट इट इज नॉट मिडवे. बीच में नहीं है ये हाइड्रोजन बॉन्ड में. 2H के बीच में नहीं है हाइड्रोजन, सॉरी 2A के बीच में नहीं है हाइड्रोजन, है ना. It is bridging 2 electronegative atoms, but it is not in the center. It is closer to that electron. It is closer to that electronegative atom, to which it is covalently bound. क्योंकि covalent bond तो stronger bond होता है ना, तो bond length उसकी कम होती है, तो वो बीच में नहीं है, वो उस atom के पास है which is covalently bound. So it is closer to the atom, closer to that electronegative atom to which it is covalently bound, even though hydrogen forms a bridge between 2 electronegative atoms. और बहुत सारी physical properties change हो जाती हैं, बहुत सारी physical properties change हो जाती हैं इस hydrogen bond के बनने से. Substances की बहुत important bond है, बहुत important bond है. तो हम आगे बढ़ते हैं. So, जो मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस जो हम देखते हैं, फिर वहीं पे आ जाते हैं कि हम जो देख रहे हैं हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम इसको देखते हैं. तो पहले देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है. जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो उससे मॉलिक्यूल को क्या फर्क पड़ता है. अब जिन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दोज मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड टुगेदर, जुड़ जाते हैं, ज्यादा पास आ जाते हैं, बड़े क्लस्टर्स बना लेते हैं. सो दोज मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड, दे कम क्लोजर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे कम क्लोजर. और अब हम एक एक करके देखते हैं कि क्या हो जाता है अगर पास आ जाता है तो, है ना. तो एक एक करके देखते हैं मॉलिक्यूल्स को क्या होता है फिर जब पास आता है. तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, बिकॉज जब मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं तो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, एंड दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड, they get transformed from gaseous to liquid state. और अगर वो gaseous state में होने चाहिए तो वो liquid state में आ जाते हैं, वो liquid state में होने चाहिए तो वो solid state में आ जाते हैं, because they come closer. हमने पढ़ा था, ये शुरू में ही पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं, दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना. पहली क्लास में फिजिकल फोर्सेस, केमिकल फोर्सेस की बात की थी, राइट, इन द फर्स्ट क्लास, आई रिमेम्बर. ओके, सो मैं 1 मिनट के लिए जस्ट वांट टू गो टू द व्हाइट बोर्ड. मेरे को मजा नहीं आता जब तक, चॉक एंड बोर्ड की इतनी आदत है ना कि जब तक व्हाइट बोर्ड पे ना जाओ तब तक मजा ही नहीं आता, तो इसलिए मैं जा रही हूँ व्हाइट बोर्ड पे.
थोड़ी सी और हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में गप्पे मारने के लिए. So you just let me know when you are able to see the whiteboard. अरे ये मैंने तब से आपके व्हाइट बोर्ड पे मैंने रब ही नहीं किया, ये क्या? तो अब मैं इसको रब कर लेती हूँ जल्दी जल्दी. कैसे रब करते हो आप इतनी जल्दी? Let me give me a minute. अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि आप एक बार इसको बना के रख लो तो ये जाता ही नहीं है जब तक आप इसको रब नहीं करो. मैं पता है क्या सोचती थी कि ये तो जब क्लास खत्म होती है और ये ऑटोमेटिकली इट शुड गो, बट आई डिडंट नो. सी, आई एम लर्निंग. गुड. सो नाउ, तो कैन यू ऑल सी द व्हाइट बोर्ड नाउ? कैन यू? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो अब आपको ये पता ही है कि जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं ना, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, दे आर ऑलवेज इन द गैसियस स्टेट. जो भी लाइटर सब्सटेंसेस होता है विद लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंसेस हैं, दे आर ऑलवेज इन द गैसियस स्टेट. ठीक है. और जो हेवियर होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, लेट मी राइट इट एज हाई मॉलिक्यूलर वेट. हाई मॉलिक्यूलर वेट के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बीच वाले लिक्विड स्टेट में होते हैं. ये हमेशा से, दिस इज अ स्टेट ऑफ मैटर, बिकॉज स्टेट ऑफ मैटर इज डिसाइडेड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस, जो हम अगली क्लास में करेंगे. तो स्टेट ऑफ मैटर इज डिसाइडेड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं, दे आर एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. ये हम बात करेंगे, पर यहाँ मेरे को मन कर रहा है बताने का. मॉलिक्यूलर मास, तो जितना ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट, उतना ही ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और उतने ही पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. ये खासियत है वैन डर वाल्स फोर्सेस की, जो हम डिस्कस करेंगे. और इसीलिए फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्योंकि कम है ना मॉलिक्यूलर मास, दे आर लिक्विड, दे आर गैसेस एट लो टेम्परेचर. ये हम अगली क्लास में ही पढ़ेंगे, फिर ये मत कहना कि मैम आपने बता दिया था. जब वैन डर वाल्स फोर्सेस करेंगे तो ये तो पढ़ेंगे ही. एंड आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. और इसका रीजन हम यही देते हैं कि ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना, तो ये इनके बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता. तो अगर हम सेम लाइन पे बात करें, तो हाइड्राइड्स की हम बात करें, H2S and H2O should have been gases. सिलेरियम के जो हाइड्राइड है, this should have been liquid. और इसी ग्रुप में टेलुरियम की बात करें तो this should have been solid, है ना. अब ये तो सॉलिड है, ये तो लिक्विड है, ये तो गैस है, पर ये गैस नहीं है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखा, ये आइडियली नेचर में गैस होनी चाहिए थी, बट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, this comes in the liquid state. पास आ गया ना? Molecules have come closer because of intermolecular hydrogen bonding. Ideally, nature के हिसाब से this should have also been a gas. क्योंकि ये तो वैन डर वाल्स फोर्सेस है ना जो डिसाइड है, तो स्टेट ऑफ मैटर गैस होगा. तो ये यहाँ जो एक्स्ट्रा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई वाटर में शेप की वजह से, इस वजह से ये चलो, मेरा हो गया शौक पूरा व्हाइट बोर्ड पे जाने का. अब हम वापस जाते हैं स्लाइड के ऊपर. सो कमिंग बैक टू द स्लाइड. मुझे जब तक मैं लिख ना लूं ना, तब तक मुझे लगता है कि मैंने तो पढ़ाया ही नहीं. तो देयर वी गो. तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो चलो अब आप इसको आंसर करो क्वेश्चन को. नाउ यू कैन डू इट. सिमिलर क्वेश्चन है. अब अपने आप इसका रीजन लिख लो, मैं नहीं बताऊंगी. HF को भी गैस होना चाहिए था ना, तो HF involves hydrogen bonding. चलो अब नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस जल्दी से लिख रहे हैं, मैं टाइम देख रही हूँ, बहुत कम टाइम रह गया क्लास में. तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देख लेते हैं. सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिनमें ज्यादा होगी, नेचुरली उनमें हायर एनर्जी चाहिए होगी टू सेपरेट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? यू गिव एनर्जी एंड दे मेल्ट और दे बॉयल.
So you are removing those forces of attraction between molecules, na? So because of intermolecular hydrogen bonding, molecules have come closer, and you have to use now higher energy to separate individual molecules. So this implies that compounds in which hydrogen bonding exists, जिन compounds में hydrogen bonding होती है, they have higher melting points and boiling points, है ना? So जिन compounds में hydrogen bonding होती है, the compounds in which hydrogen bonding exists, they have higher melting points and boiling points. Higher मतलब किसी से तो compare करोगे, than their counterparts with no or less hydrogen bonding. उन्हीं के similar molecules जिनमें there is no or less hydrogen bonding. So what was I saying? I don't even know what I was just saying. I think the compounds with hydrogen bonding जहाँ exist करती है, they have higher melting points and boiling points than their counterparts with no or less hydrogen bonding. Okay, so moving ahead now to the solubility. ये जो hydrogen bonding है ना, solubility पे भी इसका बहुत फर्क पड़ता है. So you have जो हमने डिस्कस कर चुके हैं, the term like dissolves like dissolves like, है ना? तो say polar molecules are soluble in polar solvents and non-polar molecules are soluble in non-polar solvents. अब आप जानते ही हो कि water तो polar molecule है ना? और अभी हमने देखा था alcohol, है ना? तो वो कोई भी सब्सटेंस कोवलेंट मॉलिक्यूल है. तो शुगर तो डेफिनेटली कोवलेंट मॉलिक्यूल है. तो शुगर तो मिसिबल है पानी में. कोवलेंट सब्सटेंसेस तो डिसॉल्व नहीं होते, पर शुगर तो डिसॉल्व होती है. कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बिल्कुल कोवलेंट मॉलिक्यूल है. और कितनी अच्छी सॉल्युबिलिटी है. तो आपको याद ये रखना है कि एनी सब्सटेंस that can form hydrogen bonds with water dissolves in water. ये रहा alcohol molecule और ये रहा sugar molecule. तो जो भी substance water के साथ hydrogen bond बना ले, उसका structure ऐसा हो कि वो hydrogen bond बना ले water के साथ, will dissolve in water. तो देखो, दो चीज़ों का ध्यान रखना. ये एग्जामिनर्स आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं किसी किसी चीज़ में. रीजंस अलग अलग हैं. आपसे ये कहा जाता है कि बेरियम सल्फेट इज आयनिक बट डजंट डिसॉल्व इन वाटर. शुगर इज कोवलेंट बट डिसॉल्व्स इन वाटर. रीजंस अलग अलग हैं बेटा. बेरियम सल्फेट वाटर में इसलिए डिसॉल्व नहीं होता क्योंकि उसके जो आयंस की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, दैट डजंट एक्सीड लैटिस एनर्जी, वेरी हाई लैटिस एनर्जी. वो कारण अलग है. जब भी आयोनिक सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी की बात हो, चाहे क्वेश्चन पेपर में हो या पढ़ते समय हो, whenever you talk of the solubility of ionic substances, तो फिर वहां पे पिक्चर में आती है सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी. हाइड्रेशन एनर्जी हैज टू एक्सीड लैटिस एनर्जी, दैट इज द मेन थिंग. बट अगर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी की बात आती है वाटर में, तो एक ही रीजन हो सकता है. अगर आपको कोई अननोन क्वेश्चन भी आए और आप देख रहे हो कि एक ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो एक ही रीजन हो सकता है दैट कोवलेंट मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना पा रहा है वाटर के साथ. नाउ we know that density of water is maximum at 4 degrees. What is density? Mass divided by volume. So for the same mass, volume of water is minimum at 4 degrees Celsius. तो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये 4 डिग्री का क्या मुहूर्त है. मुहूर्त थोड़ी कहते हैं, मुहूर्त तो टाइम को कहते हैं. मतलब 4 डिग्री की क्या मतलब है. So density of water is maximum at 4 degrees. You all know it. तो इसको हम ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, आप सब जानते ही हो. तो 4 डिग्रीज पे मैक्सिमम डेंसिटी का मतलब है उसी मास ऑफ वाटर के लिए द वॉल्यूम इज मिनिमम. सो डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड हमेशा ही ज्यादा होता है लिक्विड से, जिससे वो बना है. क्यों ज्यादा होता है बेटा? इसलिए ज्यादा होता है कि जब लिक्विड से सॉलिड बनता है,
तो the molecules come closer, है ना? If it is a liquid state, you bring the molecules closer, तो solid बन जाता है. That means for the same mass, volume decreases. यही मतलब हुआ ना? भाई एक लिक्विड है, लिक्विड को आपने कूल किया. कूल कैसे? आपने लिक्विड को कूल किया क्या? आप मॉलिक्यूल्स को पास लाए. दो तरीके से पास ला सकते हो, एक तो ठंडा करके या फिर प्रेशर रेज करके. आपने ज्यादा प्रेशराइज किया तो मॉलिक्यूल्स हैव कम closer. So the liquid is converted into solid either by increasing pressure or increasing or decreasing the temperature. Decrease temperature करो या increase pressure करो तो उससे they would come together. So for the same mass now less volume is there. So solid बन जाता है and solid therefore sinks, density बढ़ जाती है. But ice floats on water. Ice भी तो solid है ना water का. That floats on water. इसका मतलब density of ice जो है is less than that of water. Density of ice is less than that of water. बताओ. तो इससे क्या होता है? लिक्विड वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है बेटा. अब क्या होता है कि कहानी ये है कि लिक्विड वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. अब होता क्या है कि लिक्विड वाटर में, अब आप इमेजिन करो वाटर मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, एंड आपको पता ही है कि ये बहुत वीक बॉन्ड है, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है. सो लिक्विड वाटर हिलता है, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है. मॉलिक्यूल्स गो अवे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है. क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ना वाटर में. You know what kinetic energy is. So what happens is that because of high kinetic energy, water molecules are moving constantly. When they come together, hydrogen bond बनता है. When they go away, hydrogen bond टूटता है. Then they come together, hydrogen bond बनता है. Then they go away, hydrogen bond टूटता है. This goes on in liquid water. अब आपने क्या किया है ना? तो यही मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं. And since kinetic energy of water molecule in liquid state is more than the energy of hydrogen bond, तो वो water पास आता रहता है, दूर आता रहता है. हाइड्रोजन एनर्जी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड की भी तो एक एनर्जी है ना बेटा, जो हमने अभी देखी है. तो अगर ये एनर्जी ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना और फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर टूटेगा, फिर बनेगा, फिर क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मोर देन द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आगे चले, आगे चले, हाँ या ना तो बोलो. Yes, ma'am. तो अभी मैंने ये बताया, हाँ अभी मैंने ये बताया कि लिक्विड वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी से. तो ज्यादा है तो मॉलिक्यूल को वापस दूर ले जाएगी. अब क्या होगा? जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करोगे आप, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी. टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो अब मॉलिक्यूल्स में जान ही नहीं रहेगी मूव करने की. यस मैम. है ना? तो मॉलिक्यूल्स में तो जान ही नहीं रहेगी अब मूव करने की. जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी. और फिर क्या होगा? जस्ट बिलो 4 डिग्रीज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी से. और स्टैटिक हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने रहेंगे. वाटर मॉलिक्यूल दूर नहीं जा पाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स अब बने रहेंगे आइस में. और ये हो जाता है एट अबाउट 4 डिग्रीज. इससे पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं जा पाते बेटा, बिकॉज आइस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है. सो 4 डिग्रीज के आसपास सबसे पास होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स टू ईच अदर. एट 4 डिग्रीज जो है वाटर मॉलिक्यूल्स सबसे पास होते हैं. अगर आप इससे टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो भी वाटर मॉलिक्यूल्स और पास नहीं जा सकते क्योंकि वो वहीं फ्रीज हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं
इससे पास नहीं जा सकते। आप 4 डिग्री करो, 3 डिग्री करो, 2 डिग्री करो, 1 डिग्री करो, water molecules will not be able to go closer because hydrogen bonds have frozen there in ice, right? और अगर 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर करो तो क्या होगा? तो थोड़े से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे। 4 डिग्री से ज्यादा करते ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर वो टूट जाएंगे, फिर वो आइस पिघल जाएगी। अब आइस में ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। लेट अस सी हाउ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। थोड़ा सा फर्क है। वाटर में तो वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन आइस में उसको देखते हैं हम that each water molecule जो है that is bonded to 4 other water molecules, that is bound to 4 other molecules. 2 हाइड्रोजन से थोड़ा सा डिफरेंट है ना लिक्विड वाटर से। हाइड्रोजन बॉन्ड लिक्विड वाटर में भी हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आइस में भी हैं, लेकिन आइस में इस तरह के बॉन्ड्स बन गए, 2 लोन पेयर से, 2 ऑक्सीजन से, इस तरह से। अब इससे क्या हो रहा है कि जब ये तो खैर, ये जो आप एक वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हो 4 के, पर ये तो पूरे क्रिस्टल में जमते हैं ना, एंड यू कैन सी कि इस तरह की स्पेसेस बीच में क्रिएट हो जाती हैं आइस में। तो लिक्विड वाटर में तो क्या होता है, ये बॉन्ड्स नहीं होते ना, वो बनते हैं बिगड़ते हैं, बनते हैं बिगड़ते हैं। ये जो देख रहे हो ना आप, 4 तरह से वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गया है। लिक्विड वाटर में तो ये हिलते रहता है ना, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, दूर होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, टूटते हैं। सो लिक्विड वाटर में तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत पास पास होते हैं, लेकिन जब आइस बनती है तो ये इस तरह से फ्रीज हो जाता है विद लॉट्स ऑफ स्पेस इन बिटवीन। तो एक्सपैंड हो गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया इसका इस तरह से। ये पास तो नहीं आ पा रहे आप, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स पास नहीं आ रहे, यहीं फ्रीज हो गए। सो वाटर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग, water expands on cooling. And volume becomes large in ice. मतलब for the same mass, volume बढ़ जाता है। For the same mass, volume बढ़ जाता है। There's a tetrahedral coordination around each molecule. खूब ज्यादा गैप्स आ जाते हैं बीच में मॉलिक्यूल्स के, स्पेस बहुत वेस्ट हो जाती है। और जैसे आप वाटर को हीट करते हो ना, जैसे इसको आइस को हीट करते हुए ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाते हैं, तो लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाता है। इनफैक्ट भाई ये जो बड़ी बड़ी स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं बीच में, इतने बड़े बड़े होल्स बीच में हैं, जैसे ये आइस को आपने हीट किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हीट करते ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे, तो लिक्विड का वॉल्यूम कम हो जाता है और सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। वाटर एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग। आइस को पिघलाते ही वाटर मॉलिक्यूल फिर पास में आ जाते हैं, तो फिर इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। तो 4 डिग्री का ये मतलब है। 4 डिग्री से अगर कम आप कूलिंग करते हो तो कुछ नहीं होता, वो वहीं पे तो फ्रीज हो चुके हैं। और 4 डिग्री से आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं। और अब जरा इस क्वेश्चन को आंसर करो। पहले लिख लो सारा, फिर मैं क्वेश्चन पूरा करती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली HF में ज्यादा है, उसके बाद H2O में, उसके बाद अमोनिया में, कोई डाउट ही नहीं है। साइज भी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी।
इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, कोई घपला ही नहीं हो सकता. Buts are always there. But boiling point of water is more than that of HF, is more than that of ammonia. Why? बताएगा कोई? Can anybody tell? दो बनते हैं वैसे. कहाँ दो बनते हैं वैसे? तो अमोनिया में तो 3 बनते हैं. लिक्विड वाटर में अगर 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है तो अमोनिया में तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है. मोलर मास होता है इसलिए. अच्छा चलो, अब अपनी कॉपी पे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखो, सारे के सारे हाइपोथेटिकल वैल्यू लिखो. सपोज HF में हाइपोथेटिकल वैल्यू है. सपोज HF में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो 100 किलो जूल्स पर मोल है. बॉन्ड तोड़ने के लिए यू नीड 100 किलो जूल्स पर मोल. HF में लिखो, फिर अपने आप आंसर करना. हाइपोथेटिकल वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है 100 है. आप सिर्फ 100 लिखो ना, किलो जूल्स पर मोल वगैरह इतना फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है चीजों को समझने में. HF में 100 है इसको तोड़ने के लिए. ठीक है. वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं लेकिन वो वीक है ना, वाटर तो वीक है. सपोज इसको एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू नीड 60 किलो जूल्स पर मोल. वाटर के साथ लिखो, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यू नीड 60 किलो जूल्स पर मोल. अमोनिया में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत वीक है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को एक तोड़ने के लिए यू नीड 30 किलो जूल्स पर मोल. 30 किलो जूल्स पर मोल. अब HF में एक बॉन्ड तोड़ना है, वाटर में 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, अमोनिया में 3 बॉन्ड्स को तोड़ना है. अब मुझे बताओ किस में एनर्जी ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए? किस में चाहिए? HF में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ना है पर एक तोड़ना है. वाटर में उससे कम H2 में चाहिए. H2O में चाहिए ना. 60 + 60 120 हो जाएगा ना. और अमोनिया में इसको आंसर करें, यू नीड, देयर आर 2 थिंग्स बेटा. नाउ अब लेट्स टॉक ऑफ केमिस्ट्री. समझ में तो आ गई बात. लेट्स टॉक ऑफ केमिस्ट्री. इसको आंसर करने के लिए यू नीड बोथ द थिंग्स. हर चीज का बैलेंस होना चाहिए ना. एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. यू नीड टू सी बोथ strength of hydrogen bonding, strength and extent. You need to see the strength of hydrogen bonding, you need to see the extent. एक ही चीज पे कुछ नहीं होता ना बेटा, मैंने बताया ना. हर चीज को कुछ भी होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. एक ही पॉइंट को पकड़ के हम उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते. तो आपको मैंने ये जो रफ सा एक एग्जाम्पल बताया कि अब आप देख रहे हो, इससे एग्जाम्पल को आपको पता चला कि भी ये ऑर्डर में अगर स्ट्रेंथ्स हैं, HF में 100 है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. H2O में 60 है, लेकिन वो 60 + 60 2 बॉन्ड तोड़ने में यू नीड 120 किलो जूल्स. और अमोनिया में 30 भी कर लो तो भी 100 से कम है. तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ HF, इज मोर देन दैट ऑफ अमोनिया. वाटर का इसलिए ज्यादा हो जाता है कि ये जो है होता है कि एक्सटेंट और स्ट्रेंथ का बिल्कुल बढ़िया कॉम्बिनेशन है. सो यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो क्लास खत्म करें.